Yes, Muthal, you are from South India. Today we discuss about the structure of the human eye and what is the mechanism. Means how we are able to see the object. Okay, so let's start. So हम स्टार्ट करते हैं. ठीक. तो all you know that our eye is the organ of sight. ठीक. All you know that आई को हम बोलते हैं organ of sight. Eye is the organ of sight, organ of vision. Anyone tell me which part of the brain? Yes, Priyam, good morning. Which part of the brain is the site of vision? Which part of the brain? मतलब the eye will carry the optic nerve to which part of the brain to see the object? Anyone reply in the comment box. Which part of the brain helps in vision? Yes, occipital lobe. We will discuss occipital lobe. Yes, occipital lobe. मतलब आई से तुम्हारा क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर निकलते हैं and they will carry the signal to the occipital lobe. Okay. So human eye are able to see the light having wavelength this much. You must remember, because you cannot see all the light of every type of wavelength. You can only see the light, visible light having wavelength 370 to 780 nanometer. This range of light you can see. ठीक? Because you cannot see the ultraviolet ray, you cannot see the infrared, you can only see the light having wavelength 370 to 780 nanometer. Okay. The human eyes are present in the sockets of skull. So you know that, you see these are our orbits. These are the orbits or sockets where our eyeballs are present. Okay, these are the sockets or orbit of the eyeball where eyes are present. Weight of the each eyeball. हमारा जो suppose मतलब like this socket है, मतलब like this we have the socket and inside this we have the eyeball. Inside this we have the eyeball. So this is the socket. Okay. So if you calculate, it is for only information purpose. The weight of the each eyeball is about 7 gram and the diameter of each eyeball is about 2.5 centimeter. It is only for the purpose of your information. Okay? The weight of the eyeball is about 7 gram and the diameter is about 2.5 centimeter. Okay. If you see the diagram of the eyeball, the diagram is from the NCERT book. So what are the structure? Yes, Siddharth, good morning. I think you are fine. Siddharth, I think you are fine. Your preparation is going well. And I think this year you will definitely crack the NEET. Okay. So you see, this is the diagram for the eyeball. Okay. If you see the entire eyeball, different layers are there. This is the wall of the eyeball. This is the wall of the eyeball. Okay. If you go from outside to inside, different layers are there. So students, you see here, the first layer is the sclera. This is the first layer. ये पहला layer है sclera. Sclera is the outermost layer of the eyeball. Then उसके बाद हमारा क्या है? This was the middle is the choroid. Then we have the layer called choroid. ठीक? So this outermost layer, this is the sclera of the eyeball. ठीक? उसके बाद then we have the middle is the choroid. This is the choroid layer, sclera, choroid, and the innermost layer is the retina layer. The innermost layer is the retina. So very simple. From outside to inside we have the three layers: sclera, choroid, and your cornea. Understood? So one by one we'll discuss about the different layer. Okay. So first come to the sclera layer. You see, sclera is the outermost portion. Sclera is this entire outermost part. This entire outermost part is the sclera. Okay. Okay.
But can you say what is the composition of sclera? Sclera is composed of what kind of tissue? ये तुम्हारा white कलर का दिखता है. अगर तुम if you see the eye from front, you are looking the white color. Yes, that white color part, that white portion is the sclera. Okay, that is made up of a dense connective tissue. Particularly, it is rich in the collagen fiber. So that's why it looks white color. जो तुम्हारा white जैसा दिख रहा है, वो तुम्हारा है sclera. Okay, but the anterior part of the sclera is transparent. But ये जो वाला part तुम्हारा है, ये वाला part, this is the posterior part of the sclera. Only this part you can see. If you see the eyeball from the front side, if you see the eyeball from the front, अगर हम सामने से देखेंगे, you can only see the small portion of the sclera. ठीक? But the anterior part is transparent in nature. This part is transparent. That is called cornea. This anterior part is transparent in nature. That is called cornea. Understood? तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं. Okay, तो मैं बोल रहा था. So if you see the composition of wall of the eyeball, first is the sclera. It is the fibrous layer. It is the fibrous layer made up of connective tissue fiber. Then middle is the choroid. It is rich in blood vascular layer. It is rich in blood vessels, blood capillaries, vascular layer. And the innermost is the cornea. It is the nervous layer. It is made up of nervous tissue. Made up of nervous tissue. So first we discuss about the sclera. ठीक? तो we discuss some important points regarding sclera. Okay. तो I told, मैंने तुमको बोला, sclera is made up of dense connective tissue. ये जो तुम्हारा the part which are able to see the white color का, जो तुम्हारा देखो, ये चश्मा में निकाल रहा हूँ, ये white color का portion है, the white portion. इस white portion is the sclera. Okay? It is rich in collagen fibers. It is rich in collagen fibers. And it is also called white of the eye. Sclera also called white of the eye. Okay. But the anterior part, उसका जो sclera का front part है तुम्हारा transparent होता है. That is the transparent in nature. That is called cornea. Okay. There are some few points regarding cornea. एक तुम्हारा पॉइंट क्या है? वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट इज नॉन वास्कुलर. रिमेंबर, कॉर्निया इज नॉन वास्कुलर इन नेचर. दैट मींस इट डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स. ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. इट इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. कॉर्निया इज नॉन वास्कुलर इन नेचर. इट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई. सो हाउ द कॉर्निया सर्वाइव्स देन? एनीवन रिप्लाई? द कॉर्निया मतलब ये वाला पार्ट. ठीक? Suppose this is the eyeball, this is the sclera. तो ये जो तुम्हारा front transparent part, this is the cornea part. Cornea मतलब it is the anteriormost part of the sclera. It is non-vascular in nature. It does not have blood supply. So how? And cornea is the living tissue. It is not dead. So now you tell me from where the cornea get nutrients. Anyone reply in the comment box? Cornea is non-vascular in nature, so it does not have, yes, means from the aqueous humor. You see in the diagram, you see. तो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा कॉर्निया है. ये वाला पार्ट, this part is the cornea. In this layer, no blood vessels are there. So here some kind of fluid is there. We'll discuss later. It is called aqueous humor. This fluid means the part means between cornea and lens. This chamber is called aqueous chamber, and this here is the fluid that is called your aqueous humor. So from the aqueous humor, so the cornea is in contact with the aqueous humor. So from this aqueous humor, the cornea will get the nutrients, and that is the reason that the cornea transplantation is always 100% successful. It is an important fact. Whenever
we go for cornea transplantation. So there is no antigen antibody reaction because in this layer no blood vessels are present, absent. That is the reason that there is no antigen antibody reaction here, and always cornea transplantation is 100% successful. Okay, means your body will not going to reject. But if you go for the kidney transplantation or any other transplantation, your CMI will reject that organ because there is some kind of antigen antibody reaction. Yes, Swapna, welcome to the class. Understood? So that I was telling. Sometimes question come, cornea is covered by what kind of tissue? The tissue present inside the cornea is non-keratinized stratified squamous epithelium. Remember, important point. The cornea is covered by non-keratinized stratified squamous epithelium. Objective question. Non-keratinized मतलब keratin absent. Stratified means more than one layer of flat cells. Okay. Now you tell me, what do you mean by conjunctiva? Anyone reply? What do you mean by conjunctiva? Which part is called conjunctiva? Anyone reply? हमने स्क्लेरा पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया, बट एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा. उसका इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस और पिंक आई. तो विच पार्ट इज कॉल्ड conjunctiva? Its inflammation is called conjunctivitis or pink eye. Sometimes one worm is there, a round worm that is called lua lua. You may find questions in some objective books. Lua lua is called eye worm. Okay, it causes inflammation of conjunctivitis or pink eye condition. You see, जो तुम्हारा व्हाइट पार्ट दिख रहा है स्क्लेरा का और कॉर्निया, तो ओवर द मतलब जो पार्ट हमको द पार्ट विच यू आर एबल टू सी फ्रॉम द फ्रंट, जब हम सामने से देखेंगे आईबॉल को, तो व्हाइट पार्ट, दैट व्हाइट पार्ट इज देयर स्क्लेरा एंड द कॉर्निया. तो जस्ट ओवर द कॉर्निया एंड स्क्लेरा ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज देयर. द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंजंक्टिवा. मींस जो स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा के ऊपर व्हाइट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है. Over the cornea we have the transparent membrane. A transparent membrane is covering the cornea and the sclera. That transparent membrane is called conjunctiva. Okay. Sometimes it gets inflammation. That is called conjunctivitis. One eye worm that is called lua lua, it causes inflammation of your conjunctiva. Understood? Another term here we use that is called canal of Schlemm. Anyone reply? What is canal of Schlemm? Sometimes you will find questions that is canal of Schlemm. You see, हम theory discuss करेंगे in the form of question format में. Theory तुमको सबको पता है. All you know the theory of the eye. But we will discuss the theory class with junction of sclera and cornea. Yes. देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ यहाँ पे. If you see the structure of eyeball, here, at the junction of sclera and cornea, in this part, at the junction of sclera and cornea, one canal is there. So this canal is called canal of Schlemm. What is the function? From this canal, what happened? There is the here we have here what? Aqueous humor. Okay. So the aqueous humor drain out from this canal of Schlemm. The excess amount of aqueous humor when produced here, they drain out with the help of canal of Schlemm to maintain the pressure. So canal of Schlemm is the present at the junction of the. It is a circular canal present here between the sclera and the cornea. So it is all about the sclera.
Then come to the second middle layer of the eyeball, that is called choroid. So choroid is the middle layer of the eyeball. It is also called uvea. We use a word that is called uvea. Yes, Aryan Huda, good morning. Aryan Huda, good morning and welcome to the class. Okay. So choroid, it is the middle layer. It is also called uvea. It is the vascular layer of the eyeball. It is rich in blood vessels. Okay. It supply nutrients, oxygen to the lens of the eyeball, to the retina of the eyeball. Okay. And this layer is dark in nature. If you see the eyeball, it is the dark layer because ये जो layer होता है, it is rich in melanin pigment. Understood? The choroid layer contains melanin pigment, so it is dark in nature. तो उससे क्या benefit होता है? It prevents internal reflection of light. It prevents internal reflection of light. Let me explain. Suppose this is the eyeball. This is the eyeball. Okay. Suppose this is the middle layer. That is the choroid layer. Choroid layer. And the choroid layer is dark in nature. This choroid layer is dark in nature. Middle layer is the choroid. It is dark in nature because it contains what? Because it contains melanin pigment. So what they do? They absorb the light. They prevent the internal reflection. Is it? Yeah. What happened then? You can see the object. If there will be internal reflection of light, you cannot see the object very clearly. Okay. So the choroid layer is rich in the melanin pigment. It is dark in nature. It prevents the today's इंद्राज बेटा आज का जो क्लास है तुम्हारा थ्योरी क्लास है, ठीक है? मैं तुम्हारा कल का मेरा क्लास वगैरह है एमसीक्यू क्लास है, बिकॉज इसके प्रीवियस वीक में बहुत सारे एमसीक्यू क्लास ले चुका हूं, तो थोड़ा थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज थ्योरी भी तुमको चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट. Okay, and the choroid layer, it is rich in the blood vessels. Okay, so it is nourishment. It supply nourishment and oxygen to the retina. You remember? Okay. Then, okay. एक important question तुम्हारा आता है यार. What do you mean by tapetum? एक तुम्हारा आता है sometimes question. Tapetum क्या होता है? What is tapetum? Anyone reply in the comment box. Tapetum. What is tapetum? Okay, tapetum तुम्हारा क्या होता है? In case of animals like cat, they have the well developed tapetum. एक layer होता है tapetum. मतलब in the choroid में, in the choroidal layer you will find there is called tapetum. वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. मीन्स इन द नाइट द आई विल ग्लो. एनिमल लाइक सपोज कैट, इफ यू सी द आई ऑफ द कैट इन द नाइट, अगर हम रात में कैट का आई को देखेंगे तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होता है. दैट रिफ्लेक्टिंग लेयर इज द टापेटम लेयर. ठीक. इन केस ऑफ एनिमल जो कि तुम्हारा नाइट में घूमते हैं, उनका आंखों से लाइट निकलता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टापेटम. इट रिफ्लेक्ट्स लाइट. ठीक. एनिमल लाइक कैट, एक एनिमल तुम्हारा होता है जैसे कि बता रहा हूं कैट. इफ यू सी इन द नाइट द आई ऑफ द कैट, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट, वो ग्लो करेगा टापेटम की वजह से. ओके. उसके बाद तुम आएगा क्या? आइरिस. उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? आइरिस. देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूं यहां, हम डायग्राम में चले आते थोड़ा. ओके. सो ये जो मिडिल लेयर है, ये जो तुम्हारा मिडिल लेयर तुम्हारा है, मिडिल लेयर. ठीक. सो ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर द कोरोइड है. ओके. तो ये जो पीछे वाला पार्ट, ये थिन लेयर है. कोरोइड का पोस्टीरियर पार्ट इज थिन, बट द एंटीरियर पार्ट इज थिक इन नेचर. ये जो तुम्हारा एंटीरियर पार्ट तो यहाँ पे देख लो, ये जो पार्ट थिक एंड बल्जिंग है, ये जो पार्ट तुम्हारा थिक एंड बल्जिंग है, इसको सिलियरी बॉडी बोला जाता है. मतलब ये वाला जो पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पार्ट,
थोड़ा थिक एंड बल्जिंग है तुम्हारा कोरोइड का। यू सी एनसीईआरटी में लिखा गया है द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोइड इज थिन इन नेचर बट द एंटीरियर पार्ट इज थिक, दिस पार्ट इज थिक इन नेचर, दैट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। ठीक, यहाँ पे ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, अंडरस्टूड? ओके, इस द पीछे वाला पार्ट थिन है, ये वाला पार्ट थिक है, सिलियरी बॉडी। अगेन व्हाट? फ्रॉम द सिलियरी बॉडी अराइजेस वन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऐसा तो निकला है देखो, उसको हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। फ्रॉम द सिलियरी बॉडी एक स्ट्रक्चर निकला है, द सिलियरी बॉडी प्रोजेक्ट्स इनटू फ्रंट साइड, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आइरिस, इट इज कॉल्ड आइरिस। तो हम पढ़ेंगे थोड़ा आइरिस के बारे में, पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यू सी ये हमने लिया है एल का, ये हमने जो आई का सेक्शन लिया, ठीक। अगर हम सामने से देखेंगे फ्रंट से तो ये जो आइरिस होगा इट विल लुक सर्कुलर, समझो ये बात। हम ये साइड से देख रहे हैं, ठीक, ये हम उसका एक तो देख रहे हैं व्हाट, इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम देख रहे हैं, आईबॉल का डायग्राम देख रहे हैं, तो तुम्हारा इस साइड से तुम्हारा लग रहा है लाइक दिस, फ्रॉम द साइड ये ऐसा है। बट इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड द आइरिस विल अपीयर सर्कुलर, द आइरिस विल अपीयर सर्कुलर विद अ सेंट्रल होल, उस होल को हम बोलेंगे क्या? प्यूपिल, विद अ सेंट्रल होल दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। यस, ओके, समझ में आया? तो आइरिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आइरिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो मोहम्मद अदनान, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा हम पढ़ेंगे बिकॉज तुम्हारा नीट एग्जाम में आइरिस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इन द नीट एग्जाम यू मे फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम आइरिस। तो पहला बात तुम्हारा क्या है? आइरिस तुम्हारा पिगमेंटेड ओपैक स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस से हमारा पिगमेंटेड एंड ओपैक स्ट्रक्चर, ठीक। इट इज ए सर्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम सामने से देखेंगे आईबॉल को, इफ यू सी द आईबॉल फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक, जो आइरिस तुम्हारा होता है सर्कुलर होता है, आइरिस इज सर्कुलर विद सेंट्रल होल, दैट सेंट्रल होल इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक। आइरिस का मेन वन ऑफ द फंक्शन तुम्हारा क्या है? द आइरिस प्रोवाइड्स कलर टू द आई, द आइरिस प्रोवाइड्स कलर टू द आई, जो हमारा आई का कलर होता है दैट इज ड्यू टू द आइरिस, बिकॉज आइरिस पिगमेंटेड होता है, उसमें पिगमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पिगमेंट, किसी का तुम्हारा स्काई ब्लू होता है, किसी का तुम्हारा स्लाइड येलो रहता है, किसी का मैक्सिमम तो डार्क रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन आइरिस इट प्रोवाइड्स कलर टू द आई, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है आइरिस का जो मसल्स के बारे में। ऑल यू नो दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मसल्स? इन जनरल मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एम्ब्रियो? मसल्स कौन से लेयर से ओरिजिनेट होते हैं? यस, मेसोडर्म। Normally the muscles they arise from the mesoderm of the gastrula, okay, but जो iris जो muscle special होते हैं, they are the only muscles they arise from ectoderm, because iris is a part of your what? Sense organ, okay, so ये जो iris का जो muscles होते हैं they arise from the ectoderm, and iris में two types of muscles होते हैं। एक तुम्हारा होता है circular muscles, the iris contains circular muscles, you see circular muscles, they are the sphincter muscle, when these muscles contract तो क्या होगा? they constrict the pupil, ठीक। ये देखो मैं सर्कुलर ले रहा हूं, तो आइरिस में तुम्हारा होता है सर्कुलर मसल्स आर देयर, इन द आइरिस वी हैव द सर्कुलर मसल्स, when these muscles contact what they do? they constrict the pupil, वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्फिंक्टर मसल, ओके। बट आइरिस हैज आल्सो रेडियल मसल्स, आइरिस हैज आल्सो व्हाट? रेडियल मसल्स। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे कॉल्ड डायलेशन ऑफ प्यूपिल, उसको डायलेट कर देंगे, समझ में आया? तो आइरिस का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, डायलेट होता है। जब तुम्हारे आंखों में बहुत ज्यादा लाइट गिरता है, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट,
तो पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव एंट्री ऑफ लाइट। ठीक, लाइट जब बहुत कम डीम लाइट होता है तो पीपल थोड़ा डायलेट होता है, सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन बी एंटर इनटू द आईबॉल। अंडरस्टूड? सो ये तुम्हारा इंपोर्टेंट तुम्हारा है, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें होता है सर्कुलर और स्फिंक्टर मसल होता है, और रेडियल और डायलेटर मसल तुम्हारा होता है, एंड दे अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म। मेरे को तुम बताओ, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा सिस्टम करता है, डायलेशन कौन करता है? ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आता है। पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन, पीपल का डायलेशन इंपोर्टेंट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करता है एंड डायलेशन कौन करता है? रिप्लाई, पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन, पीपल का डायलेशन। ये एक इंपोर्टेंट तुम्हारा है नीट एग्जाम के लिए। ओके, सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जब लाइट तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, जब लाइट तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, सो पैरासिम्पैथेटिक कॉजेस मायोसिस, इसको मायोसिस बोलते हैं, ये कॉजेस मायोसिस। When the light is very bright, जब लाइट बहुत ज्यादा होता है, ब्राइट होता है, the parasympathetic activated, it causes meiosis, it causes constriction of the pupil। constriction मतलब ये क्या करता है? contraction of circular muscles, parasympathetic, याद रखना। but लाइट बहुत जब डीम होता है, डीम लाइट, तो sympathetic activated, it causes mydriasis, याद रखना, mydriasis, meiosis, mydriasis, mydriasis मतलब डायलेशन ऑफ पीपल। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो पैरासिम्पैथेटिक कॉजेस मायोसिस और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, सिंपैथेटिक कॉजेस माइड्रियासिस और डायलेशन ऑफ पीपल। तो तुम्हारा जो पीपल से क्वेश्चन तुम्हारा गिर सकता है नीट एग्जाम में। पीपल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट पीपल। उसके बाद तुम आ जाओ बेटा लोग, रेटिना लेयर आ जाओ। रेटिना, रेटिना जो हमारा है इनर मोस्ट लेयर है तुम्हारा आईबॉल का, इनर मोस्ट लेयर है आईबॉल का। ठीक, सपोज मैं बताऊं, अगर सपोज ये तुम्हारा आईबॉल है, सपोज आईबॉल है, ठीक, ये तुम्हारा हो गया आईबॉल। ओके, तो रेटिना लेयर तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर रेटिना है। सपोज तुम्हारा ये जो इनर मोस्ट लेयर तुम्हारा है रेटिना लेयर, सपोज ये वाला तुम्हारा हो गया रेटिना। ओके, इफ यू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, इनसाइड टू आउटसाइड, इफ यू मूव इनसाइड टू आउटसाइड, सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स। इनसाइड टू आउटसाइड पहले तुम्हारा आएगा गैंग्लियन सेल आएगा, इनसाइड टू आउटसाइड। सेकेंड में तुम्हारा आएगा बाइपोलर सेल, एंड तुम्हारा थर्ड में तुम्हारा आएगा फोटो रिसेप्टर सेल और रॉड एंड कोन सेल। याद रखना, अगर आप इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, ये सीक्वेंस तुम्हारा आ सकता है नीट एग्जाम में। इफ यू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द आईबॉल टू आउटसाइड, तो पहले तुम्हारा रेटिना में, मतलब ये जो लेयर तुम्हारा रेटिना, रेटिना में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। ये जो तुम्हारा रेटिना लेयर है, रेटिना का बात कर रहे हैं, ये जो रेटिना तुम्हारा लेयर है, रेटिना लेयर, रेटिना में देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनर मोस्ट लेयर तुम्हारा आएगा गैंग्लियन सेल्स, ठीक, बिकॉज गैंग्लियन सेल दे गिव राइज टू द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, दे गिव राइज टू द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। उसके बाद तुम्हारा आता है बाइपोलर सेल, तुम्हारा आता है, उसके बाद तुम्हारा आता है रॉड एंड कॉन सेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोटो रिसेप्टर सेल्स, विल डिस्कस अबाउट फोटो रिसेप्टर सेल्स। ओके, तो ऑल यू नो दैट द फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये वाला जो तुम्हारा है फोटो रिसेप्टर सेल्स, दे हैव द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, पढ़ेंगे हम। दीज आर 2 टाइप्स, एक तुम्हारा रॉड और एक तुम्हारा है कोन्स।
सो दे आर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स, उसको हम फोटोपिगमेंट बोलते हैं। दे हैव द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स। आई थिंक ये क्लियर तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा नीट में आ सकता है। द लेयर्स ऑफ रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू, अगर हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो पहले आएगा फोटो रिसेप्टर, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन सेल। ओके, देखो लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा तुमको समझा दे रहा हूं। ठीक, सपोज दिस वन, ठीक, सपोज ये तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर हो गया आईबॉल का, सपोज ये हो गया तुम्हारा स्क्लेरा, ठीक। सपोज उसके बाद वाला लेयर तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया कोरोइड, तो उसके बाद ये जो लेयर तुम्हारा होगा उसके बाद तो रेटिना लेयर होगा। तो रेटिना में इनसाइड से आउटसाइड, मतलब सबसे बाहर की तरफ तुम्हारा क्या होगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स होगा तुम्हारा, रॉड एंड कोन सेल, ठीक। ये सपोज रॉड एंड कोन सेल। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, बाइपोलर न्यूरॉन होगा, वी हैव द बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, गैंग्लियन सेल्स, उससे तुम्हारा निकलेगा ऑप्टिक नर्व फाइबर निकलेगा, ठीक। सो अगर इनसाइड मतलब ये वाला, अगर इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे तो पहले ये तुम्हारा गैंग्लियन सेल, ये तुम्हारा बाइपोलर सेल, ये तुम्हारा रॉड और कोन सेल। तो दिस एंटायर, सो टोटल तुम्हारा क्या है, रेटिना लेयर है। तो टोटल इज द रेटिना। अगर हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो पहले रॉड, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन सेल। तो पहले हम पढ़ेंगे रॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अब आ जाओ अबाउट रॉड्स, ठीक। सो व्हाई इट इज कॉल्ड रॉड सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड रॉड सेल, यू सी। तो टोटल इज ए रॉड सेल, ये टोटल तुम्हारा है एक रॉड सेल तुम्हारा है। इसका जो आउटर पार्ट होता है प्रोजेक्ट लाइक ए रॉड, ये रॉड सेल का आउटर पार्ट होता है, इट प्रोजेक्ट्स लाइक ए रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड रोडोस्पिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रॉड सेल। द आउटर पार्ट ऑफ द रॉड प्रोजेक्ट लाइक ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, so called rod cell or rod. This part is called rhodospin protein, the photosensitive protein. It is purplish red in color, NCERT के हिसाब से it is purplish red color protein rhodospin. It is a photopigment, मतलब it is sensitive to light. जब इसमें लाइट गिरता है स्प्लिट हो जाता है, it is sensitive to light, मतलब जब यहाँ पे तुम्हारा लाइट गिरता है ये तुम्हारा स्प्लिट हो जाता है। It is a photosensitive, light sensitive protein that is called rhodospin. नीट में आता है, it consists of two parts, एक होता है ऑप्स्पिन, एक होता है रेटिना, मतलब आल्डिहाइड फॉर्म ऑफ द विटामिन ए, ये तुम्हारा आल्डिहाइड, विटामिन ए का ये तुम्हारा है आल्डिहाइड फॉर्म में है, समझ में आया। इसको स्कोटोस्पिन भी बोलते हैं, they also called scotopsin, समझ में आया। So rhodospin is equal to opsin and retina। तो इसका फंक्शन तुम्हारा क्या होता है, रॉड का तुम्हारा फंक्शन है स्कोटोपिक और ट्विलाइट विजन, मतलब विजन इन द लो लाइट, डीम लाइट, ठीक। यू सी डीम लाइट में भी तुम कुछ देख सकते हो, यू आर एबल टू सी, डीम मतलब बहुत डार्क नहीं, ठीक। डीम लाइट मतलब स्लाइड तुम्हारा हल्का अंधेरा है एंड स्टिल यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, ओके। रितेश गुड मॉर्निंग, ओके। समझ में आया, तो ये थोड़ा याद रख लेना। ओके, प्राची गुड मॉर्निंग, ओके। तो
समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा याद रखना एक बार। स्कोटोपिक और ट्विलाइट विजन मतलब डीम लाइट विजन। तो और हमारे आईबॉल में कितना तुम्हारा है? ईच आईबॉल हैज अबाउट 120 मिलियन रॉड्स। ईच आईबॉल हैज अबाउट, वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, शिवांशु गुड मॉर्निंग, मनस्विनी गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेहनत करो, एक नीट एग्जाम तो होगा ही होगा, ठीक? तो चाहे जुलाई 26 में हो या थोड़ा लेट में हो, होना ही होना है नीट एग्जाम को। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। तो समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया रॉड सेल के बारे में। नीट 2021 शायद मिल करके होगा, नहीं 2020 और 21 सब मिल करके देना सब एग्जाम। 2020 मतलब तुम लोग अभी और जो लोग सब 2021 में देंगे मिल करके सब देना, ठीक? अब आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा आ गया कि रोडोस्पिन तुम्हारा काम ये कैसे करता है, थोड़ा देख लो। कभी कभी नीट में आ जाता है क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा। हमने क्या पढ़ा? रोडोस्पिन इज ए फोटो सेंसिटिव प्रोटीन। पढ़ा हमने, इट इज ए फोटो पिगमेंट, मतलब जब इसमें लाइट गिरता है स्प्लिट हो जाता है। जब इसमें तुम्हारा क्या होता है, लाइट गिरता है स्प्लिट हो जाता है, उसको ब्लीचिंग बोलते हैं, याद रखना। When light will falls on the rhodospin, ये तुम्हारा टूट जाता है, ब्लीचिंग हो जाता है। Into what? Opsin and retina। समझ में आया? जब लाइट गिरता है तुम्हारा रोडोस्पिन में, ये टूट जाता है, उसको ब्लीचिंग बोलते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिना। तो उसमें जो तुम्हारा ऑप्सिन होता है वो ट्रांसफॉर्म में होता है, ट्रांस सीस एंड ट्रांसफॉर्म में होता है, आइसोमेरिज्म फॉर्म में होता है ट्रांसफॉर्म। जब तुम्हारा डार्क होता है, डार्क में तुम्हारा क्या होता है, सीस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा याद रखना, ये कभी कभी आता है। इफ यू सी द ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो ये सब रहता है क्वेश्चन सब। जब लाइट गिरता है तो ऑप्सिन रेटिना हम पढ़ेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब निक्टालोपिया, उसका बेसिक कॉज तुम्हारा क्या है? दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन योर डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ मेनली विटामिन ए इन योर डाइट। सो समझ में आया? ऑप्सिन और रेटिनल। लेकिन डार्क में तुम्हारा क्या होता है? इट बिकम्स 11 सिस रेटिनल एंड दैट कंबाइंस विद अगेन ऑप्सिन टू फॉर्म व्हाट? अगेन रोडोस्पिन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन द डार्क इट अगेन बिकम रोडोस्पिन। इसको हम डार्क एडाप्टेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डार्क एडाप्टेशन। मतलब ये लाइट में टूट जाता है, डार्क में अगेन कंबाइन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? रोडोस्पिन तुम्हारा क्या होता है? जब लाइट गिरता है तो ब्लीचिंग टूट जाता है, अगेन इन द डार्क ये अगेन कंबाइन। एंजाइम तुम्हारा होता है इसके लिए रेटिनिन आइसोमरेज एंजाइम, इसको हम डार्क एडाप्टेशन बोलते हैं। मैं बोला निक्टालोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस। डीम लाइट में यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, नो विजन इन द डीम लाइट। तो ये थोड़ा याद रखना, आ सकता है कभी कभी। देन तुम आ जाओ उसके बाद कोन सेल्स। हमारे आई में देयर आर 7 मिलियन कोन सेल्स। देयर आर 7 मिलियन कोन सेल्स। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कौन सा सेल तुम्हारा ज्यादा होता है आईबॉल में, रॉड एंड कोन? याद रखना थोड़ा, ठीक? रॉड तुम्हारा हो गया 120 मिलियन, रॉड ज्यादा होता है, रॉड होता है 120 मिलियन, और तुम्हारा कोन होता है 7 मिलियन। तो कोन का तुम्हारा, यस रिचा गुड मॉर्निंग। सो कोन सेल का तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा क्या होता है? डे लाइट विजन और फोटोपिक विजन, मतलब दिन में हम देख सक रहे हैं। इन द ब्राइट लाइट यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कलर। तो फोटोपिक विजन और कलर विजन है कोन का काम, याद रखना। लेकिन नाइट विजन हुआ तुम्हारा, रॉड का काम हुआ नाइट विजन और स्कोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन, कलर विजन, ये तुम्हारा कोन सेल का काम है, ठीक? कलर मतलब क्या? बेसिकली हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल होते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी कलर
एक होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक तुम्हारा ब्लू कलर के लिए। समझ में आया? ओके। तो इसका जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? आयोडोस्पिन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जैसे कि तुम्हारा रॉड का हो गया रोडोस्पिन, इसका तुम्हारा हो जाएगा आयोडोस्पिन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल वायलेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल वायलेट। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। एक तुम्हारा रेड के लिए होता है कोन सेल्स, एक तुम्हारा होता है ग्रीन के लिए तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा होता है ब्लू के लिए। ठीक, ओके। मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस कौन सा टाइप का डिजॉर्डर तुम्हारा है? अगर कोन सेल में डिफेक्टिव हुआ तो द पर्सन सफर फ्रॉम योर कलर ब्लाइंडनेस। तुम तो पढ़ते होगे जेनेटिक्स में, कलर ब्लाइंडनेस इज which kind of disorder? color blindness. Anyone reply in the comment box. कलर ब्लाइंडनेस तुमने पढ़ा होगा ना तुम्हारे जेनेटिक डिजॉर्डर में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा। यस, वेरी गुड ओम प्रकाश। सो बेसिकली जो तुम्हारा होता है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज द एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर। लेकिन जो तुम्हारा होता है वो बेसिकली तुम्हारा मेल उसमें ज्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक, ये हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस का, अगर हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, एक तुम्हारा होता है रेड कलर ब्लाइंडनेस और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड को हम बोलते हैं प्रोटानोपिया, ग्रीन को हम बोलते हैं ड्यूटानोपिया। दीज आर सेक्स लिंक्ड, याद रखना, दीज आर सेक्स लिंक्ड। लेकिन जो तुम्हारा होता है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिटानोपिया। ये तुम्हारा ऑटोजोमल होता है। ये तुम ठीक, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर द सेक्स लिंक्ड ट्रिट। ठीक, ट्रिटानोपिया, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस तुम्हारा हो गया ऑटोजोमल। मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन मार्क बताओ क्या है ये? व्हाट इज इश्चरिया कार्ड्स? ये कार्ड क्यों यूज होता है? एक कार्ड हम यूज करते हैं, जब डॉक्टर बन जाओगे तो ये सब करना। सब एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। व्हाट इज इश्चरिया कार्ड क्या होता है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, ये कार्ड होता है, इसको दिखा के डॉक्टर पूछता है तुमको कौन सा कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इश्चरिया कार्ड्स, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इश्चरिया कार्ड। ओके, तो स्पॉट के बारे में थोड़ा आ जाओ। आईबॉल का स्पॉट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन गिरता है। हमारे आईबॉल में देयर आर 2 स्पॉट्स होते हैं, देयर आर 2 स्पॉट्स इन द आईबॉल। एक है तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक, और एक है हमारा येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या होता है? ब्लाइंड मतलब इट डज नॉट कंटेन रॉड एंड कोन सेल। द ब्लाइंड स्पॉट डज नॉट कंटेन रॉड एंड कोन सेल। थोड़ा देखो, आ जाओ यहां पे। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट, ये तुम्हारा है ब्लाइंड स्पॉट। ये स्पॉट तुम्हारा क्या है? इट इज द स्पॉट वेयर व्हाट हैपन, ब्लड वेसल्स यहां पे एंटर करते हैं। यही स्पॉट में ब्लड वेसल्स यहां पे एंटर करते हैं आईबॉल को। ठीक, एंड जो तुम्हारा होता है क्या? ऑप्टिक नर्व फाइबर, इट लीव्स द आईबॉल फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑप्टिक नर्व तो बाहर यहीं से आता है। एक स्पॉट एरिया है, इसी स्पॉट से तुम्हारा क्या होता है? ऑप्टिक नर्व फाइबर बाहर आता है, जाता है टेम्पोरल लोब को। ठीक, जो भी ब्लड वेसल्स हैं इसी पॉइंट में एंटर करते हैं। तो ये ओपनिंग गेट की तरह है, इट इज ओपनिंग गेट। सो इन दिस पॉइंट वी डोंट हैव एनी रॉड एंड कोन सेल्स,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मतलब लाइट अगर यहाँ पे आके फोकस होगा तो यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर लाइट आके यहाँ पे तुम्हारा ऐसा फोकस हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई सेल नहीं है। ठीक, ये तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट। ये तुम्हारा आईबॉल का पोस्टीरियर पोल में है, ये आईबॉल का एंटीरियर पोल है, ये आईबॉल का पोस्टीरियर पोल है। तो इन द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल इट इज प्रेजेंट। ठीक, इसके जस्ट लेटरल साइड में, यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में लेटरल साइड में और एक तुम्हारा है, टोटल स्पॉट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट और मैकुला ल्यूटी। टोटल स्पॉट इसके जस्ट लेटरल में, इसके ऊपर में थोड़ा है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल। तो टोटल एरिया इज कॉल्ड येलो स्पॉट, मैकुला ल्यूटी। उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं फोबिया बोलते हैं। ये रेटिना का सबसे थिन पार्ट होता है and it is densely packed with the, ठीक। नेक्स्ट हम करेंगे, इट इज ए गुड सजेशन फॉर यू। प्रतीक शर्मा, हम हम क्या करेंगे, मंडे ने तो ट्यूसडे को मैं रखूंगा एक क्विज सेशन रखूंगा। ठीक ठीक ठीक, मंडे एक्चुअली मैंने क्या, तुम्हारा क्वेश्चन मैंने टाइप करवा लिया भेजा है। एक्चुअली जो तुम्हारा एमसीक्यू होता है तो थोड़ा टाइप करवाना पड़ता है, थोड़ा उसमें काम रहता है। एटलीस्ट सपोज अगर 50 क्वेश्चन तो थोड़ा टाइप करवाना पड़ता है, तो टाइप के लिए मैंने दिया है उसको। ठीक, तो वो मेरे को मंडे तक दे देगा। ठीक, तो मैं करूंगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में मैं तो क्विज प्रोग्राम सब करूंगा। यस, इट इज गुड सजेशन। ओके, सो ये हो गया। तो वही बोल रहा था, तो टोटल जो तुम्हारा स्पॉट है, टोटल जो तुम्हारा एरिया है, टोटल एरिया है तुम्हारा है येलो स्पॉट मैकुला ल्यूटी। उसका सेंट्रल डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फोबिया। इट इज द थिन्ड आउट पार्ट ऑफ द रेटिना। एनसीईआरटी बोलता है इट इज द थिन्ड आउट पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर डेंसली कोन्स आर प्रेजेंट। इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्विटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पे फोकस होगा, अगर लाइट यहाँ पे आकर के, तो यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट। ठीक, इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्विटी। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, तुम तो पढ़ते होगे फिजिक्स में, जब लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक, लेंस से आकर के यहाँ पे फोकस होगा, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट। इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्विटी, फोबिया। तो यही थोड़ा देख रहा था मैं। सो ब्लाइंड सॉफ्ट स्पॉट में नो रॉड एंड कोन सेल्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन जो येलो स्पॉट होता है, देखो इसको येलो हम क्यों बोलते हैं, इसमें तुम्हारा होता है येलो पिगमेंट ज़ैंथोफिल होता है। द येलो स्पॉट मतलब येलो इन येलोइश एरिया, इट इज रिच इन द ज़ैंथोफिल पिगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड येलो स्पॉट। ठीक, इसको मैकुला ल्यूटी भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मैकुला ल्यूटी। सो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोबिया बोलते हैं। थिन्ड आउट पार्ट ऑफ द रेटिना, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ओनली कोन सेल्स प्रेजेंट है, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। तो थोड़ा देख लेना। थोड़ा लेंस के बारे में देख लो। हमारा जो लेंस होता है, ये तुम्हारा लेंस होता है ऐसा लेंस। लेंस जो तुम्हारा, ओके ठीक। लोपिता ने पूछा है सर थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस वाला स्लाइड दिखाइए। ठीक, लेट में दिखा, देखिए जो तुम्हारा रेड कलर का होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटानोपिया बोलते हैं। जो ग्रीन कलर होता है उसको बोलते हैं ड्यूटानोपिया बोलते हैं। ब्लू है, ठीक। ठीक, देखो तो जो लेंस हमारा होता है ह्यूमन बीइंग का, लेंस ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन होता है। ठीक, इट इज इलास्टिक एंड बाइकॉन्वेक्स। लेंस का प्रॉपर्टी हम देखेंगे
तो ह्यूमन लेंस इज इलास्टिक एंड बाइकॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, इसके ऊपर एक कवरिंग भी तुम्हारा रहता है, उसको लेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, ये तुम्हारा क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। दोनों साइड में क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर प्रेजेंट। हियर वी हैव द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक, दे होल्ड द लेंस इन प्रॉपर पोजीशन। ओके, लेंस में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलिन प्रोटीन बोलते हैं। लेंस कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलिन प्रोटीन। तो लेंस के बारे में देख लें थोड़ा, ये वाला पॉइंट था याद रखना। ह्यूमन लेंस इज इलास्टिक एंड बाइकॉन्वेक्स इन नेचर। लेंस कवर्ड बाय लेंस कैप्सूल। हाँ, ये सिलियरी बॉडी भी तुम्हारा, सिलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ये एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ। यस, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। वेरी गुड। देन अगर देखेंगे आईबॉल में कितना चेंबर है, देयर आर टू चेंबर्स इन द आईबॉल। एक होता है एक्वस चेंबर, एक होता है तुम्हारा विट्रस चेंबर। ठीक, एक होता है एक्वस चेंबर, एक तुम्हारा होता है विट्रस चेंबर। अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो लेंस एंड कॉर्निया के बीच, ठीक, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, तो ये वाला जो चेंबर तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक्वस चेंबर। इट कंटेन्स ए वाटरी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ठीक, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इट रिच इन विटामिन सी इसमें होता है, इट रिच इन ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, जो कि तुम्हारा जो कि तुम्हारा क्या करते हैं, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, लेकिन तुम्हारा ये तुम्हारा लेंस हो गया, ये लेंस का बाउंड्री हो गया, और ये तुम्हारा रेटिना हो गया। तो ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन हो गया, द एंटायर दिस पार्ट, ये वाला जो चेंबर तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया विट्रस चेंबर। इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस जेली बोलते हैं। समझ में? देखो याद रखना, इसका जो फ्लूइड है तुम्हारा वाटरी फ्लूइड। यस, आइरिस का फंक्शन, आइरिस तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्या है, ये रेगुलेट करता है प्यूपिल का डायमीटर को। हमने पढ़ा डिटेल में, आइरिस में तुम्हारा रेडियल मसल होते हैं, तुम्हारा सर्कुलर मसल्स होते हैं। यस, ये रेगुलेट प्यूपिल साइज। जब लाइट तुम्हारा बहुत ब्राइट होता है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जब लाइट बहुत डिम होता है तो प्यूपिल तुम्हारा डायलेट होता है। तो द आइरिस का जो मसल्स होते हैं, दे रेगुलेट द डायमीटर ऑफ प्यूपिल। हाँ तुम्हारा, यस, तो एक्वस तुम्हारा फ्लूइड होता है, तुम्हारा वाटर फ्लूइड होता है, लिक्विड तुम्हारा होता है, लेकिन यहाँ जो तुम्हारा फ्लूइड तुम्हारा होता है, ठीक, ये ट्रांसपेरेंट जेली टाइप फ्लूइड, उसको विट्रस ट्यूमर बोलते हैं। जब किसी टाइप का तुम्हारा आईबॉल ऑपरेशन किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, दे टेक केयर दैट कुछ फ्लूइड यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो, ये वाला फ्लूइड अगर जाएगा तो चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली तुम्हारा प्रोडक्शन होते रहता है। अगर एक्वस ट्यूमर थोड़ा लीक हो गया तो चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होते रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा इसका जो फ्लूइड, मतलब द फ्लूइड इनसाइड द विट्रस चेंबर, अगर ये सपोज बाहर लीक हो गया तो यह फॉर्मेशन नहीं होगा, इट विल डैमेज द आईबॉल। So the doctor, when they are doing operation, they take care to prevent the leakage of the vitreous humor. Can you say इसमें कौन सा केमिकल ज्यादा होता है? What type of chemical is there in the vitreous humor? इसमें क्या केमिकल होता है? Anyone? देखो, ये तो तुम्हारा वाटरी फ्लूइड इसमें है, इट रिच इन विटामिन सी, तुम्हारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड रिच रहता है। लेकिन जो तुम्हारा विट्रस चेंबर का जो विट्रस ह्यूमर यहाँ पे है, इसमें कौन सा और किस टाइप का केमिकल रहता है? एनीवन रिप्लाई? विट्रस ह्यूमर जो तुम्हारा जेली लाइक होता है, इसमें क्या होता है? हाँ, यस, वेरी गुड। दैट कंटेन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड, लाइक तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड। क्वेश्चन ने रिप्लाई दिया है, वेरी गुड। इट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक, वो क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं।
और एक स्लाइड तुम्हारा, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो तुम्हारा होता है विट्रस ह्यूमर, जो तुम्हारा होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक, इसमें तुम्हारा मोस्टली में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक। ओके सर, तुम्हारा नेट सर तुम्हारा ये हो गया, ठीक, ओके बाय। तो ये तुम्हारा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये तुम्हारा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसमें होता है, ओके। लेकिन जो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर, इसमें तुम्हारा होता है यस विटामिन सी, इसमें होता है वाटर, होता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, ये सब होते हैं। ये वाटरी, इट इज लाइक ए ट्रांसपेरेंट जेली, इट इज लाइक ए ट्रांसपेरेंट जेली, ठीक। सो ये तुम्हारा आईबॉल का चेंबर हो गया, ओके। सो थोड़ा देख लो बिगिनिंग से, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो डिस्कस, उसके बाद हम जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन में जाएंगे। थोड़ा बिगिनिंग से जस्ट देख लो, जस्ट अ क्विक लुक। स्टार्टिंग में तुम्हारा हो गया, मेरे को लगता है आज मैकेनिज्म ऑफ विजन नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास 100 बनाएंगे इसके लिए, ओनली स्ट्रक्चर में तुम्हारा चले गया, ओके। हाँ, लैक्रिमल कैरंकल एंड लैक्रिमल फोसा, ठीक। तो ये तो तुम्हारा 30 सेकेंड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक तो जो मैं इसका वीडियो बनाऊं, लेक्चर देंगे, उसमें तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ विजन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, तो टाइम तो अभी चले जाएगा ये, ओके। तुम्हारा मंडे को हम क्या करेंगे, क्विज प्रोग्राम करेंगे, ठीक, तो सब उसमें अटेंड करना, ठीक। मंडे को जो हम रखेंगे क्विज प्रोग्राम तो रखेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।